Yes, dear. Once again, I want to tell you that chapter number 9, application of trigonometry. And here, first of all, we will try to understand the basic concept of this chapter. So here is first one is angle of elevation. So you can see, let us this is a tower, or let us this is a pole, or we can take this is a mountain and other any things which gives you height, and an observer is standing in this position, and after that one object is situated at this position at the top of this tower or top of this pole and top of any other things. Then if this observer see that object just situated on the top, then the line of sight and the between ground, if the angle form, then this angle is known as angle of elevation. So always keep in your mind that angle of elevation always just between angle of line of sight and the ground, and just in the bottom. हमेशा याद रखना कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो नीचे ही बनेगा, ऊपर बिल्कुल नहीं बनेगा, और जो ऊपर बनेगा वो आपका दूसरा एंगल होगा जिसको हम कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन. तो उसको भी समझ लीजिए एक सेकंड के लिए, एंगल ऑफ डिप्रेशन. So dear, once again, the same things. If this is a lead tower and this one is a ground, and the situation is just opposite. Observer is standing here. Now here is the observer, and he is seeing from here to any object just situated on the ground. मान लो ग्राउंड पे ये ऑब्जेक्ट आपका रखा हुआ है. Okay, when you just standing on the top position, then first of all you see what is the nature. सबसे पहले आप जो नीचे रखा वो नहीं देखोगे, सबसे पहले देखो सामने कैसा दिख रहा है. ऊपर जाके है ना, ऊपर जाके सबसे पहले नीचे नहीं देखना है. आपको क्या देखते हो, कैसा दिख रहा है, दूर दूर तक कितना दूर तक दिख रहा है, या क्या क्या चीज़ दिख रही है. तो जब ऑब्जर्वर हमारा यहाँ खड़ा होकर सामने देखता है, तो यहाँ से एक लाइन ऑफ साइट इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राउंड के पैरेलल चली जाती है, हॉरिजॉन्टल लाइन. ठीक है, और उसके बाद फिर उसने देखा नीचे क्या क्या दिख रहा है. सो ही इज ऑब्जर्विंग दैट एन ऑब्जेक्ट जस्ट सिचुएटेड ऑन द ग्राउंड. तो जब वो ग्राउंड पे देखेगा तो उसकी जो लाइन ऑफ साइट है सीधी ऑब्जेक्ट पे आके पड़ेगी. लाइन ऑफ साइट. ओके, सो दिस इज द लाइन ऑफ साइट. और जो हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट, and this is a horizontal line. Then the angle between this horizontal line and the line of sight, this angle is known as depression. Angle of यही आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा जो हमेशा टॉप पे बनता है. When we will start the solution of this question, then we will use the property of angles, that is alternate and interior angle. If this angle is theta, then 100% this angle is also theta. उस समय हम ये वाले जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो दोनों को हम इस तरह से मैनेज करेंगे, क्योंकि ऊपर वाला एंगल आपका काम नहीं आने वाला है. ये सिर्फ आपके डायग्राम में डिनोट करने के लिए होगा. उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ एंगल ऑफ डिप्रेशन को डिनोट करेंगे. ठीक है, तो ये यहाँ से अब हम सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे. दिस इज ए टावर, अदरवाइज लेट इज पोल, and if we take this A and this one is B and this one is C, then 100% this angle is 90 degree, and here is also 90 degree, that is perpendicular line. So we will use only a single formula, that is tan theta equal to क्या होता है, P upon V.
P upon B means perpendicular upon base. And so many other situation, in the particular situation, not only special case, you will use other formula, that is sin theta. Sin theta equal to P upon H. P upon H, that is perpendicular upon hypotenuse. Okay. And some other case 1% only, otherwise 5% let us, cos theta equal to B upon H. B upon H, base upon hypotenuse. But in the 80% cases you will use this single formula, tan theta equal to perpendicular upon base. So this is the basic concept of this chapter. ठीक है, तो सर बात BC is a tower, हमने यहाँ पे B नाम दे दिया और ये नाम दे दिया C. BC is a tower and from the top of a tower just point on the ground, तो आपने इसे ज्वाइन कर लिया, A to C को ज्वाइन किया, एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री. एलिवेशन मीन्स इट विल बी जस्ट बिटवीन ग्राउंड एंड लाइन ऑफ साइट, ग्राउंड के पास ही होगा, तो दिस इज 30 डिग्री. ये आपका 30 डिग्री दिया हुआ है, तो आपने 30 डिग्री यहाँ पे लिख दिया. बहुत सही. देन क्वेश्चन सेज दैट दिस पॉइंट इज जस्ट अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर. 30 मीटर. टावर का जो फुट होगा उससे 30 मीटर के डिस्टेंस पे ये पॉइंट है, वो भी क्लियर कर दिया कि ये पॉइंट कहाँ पर है. तो आप ले कहीं भी सकते हो, बट द डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द टावर टू द पॉइंट इज 30 मीटर. तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको जो डिस्टेंस दिया है, दिस इज 30 मीटर. हाइट निकालनी है. एंड फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. हाइट आपको बतानी है, मीन्स ये आपको टोटल जो वर्टिकल लाइन है उसको आपको फाइंड करना है. तो ये आपका हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक हाइट. लेट अस दिस इज h, बिकॉज क्वेश्चन सेज दैट फाइंड द हाइट. यू कैन टेक x, y, z, a, b, c एनीथिंग, बट हाइट का तो हम h से ही लिख लेते हैं, बिकॉज हाइट मीन्स h e i है ना, तो h से ही लिख लिया. अब आपका डायग्राम पूरा कंप्लीट हो गया. जैसे उसने कहा वैसे वैसे आप चलते गए. क्वेश्चन में कहा गया था कि फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर, तो टावर का टॉप ये, टावर आपकी ये है, ठीक है. हमेशा टॉप हो या पोल हो या हाउस हो या बिल्डिंग हो या फिर माउंटेन हो, हमेशा वर्टिकल ही होगा और उसके बीच का ये वाला एंगल 90 डिग्री ही रहेगा. दिस इज डिफाइंड इन ऑल द क्वेश्चन, ठीक है, ये हमेशा याद रखना. तो एंड दिस पॉइंट इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट. फुट जब भी कहा जाए तो फुट यही होता है जहाँ पे वो खड़ा है, ठीक है, स्टैंडिंग पोजीशन. तो इस पॉइंट से लेकर के जो भी पॉइंट दिया गया है वो 30 मीटर हो गया. फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. तो आप सबसे पहले यहाँ थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन करोगे, थोड़ा सा डिटेल दोगे कि ये क्या चीज़ है. तो आप लिखोगे लेट BC इज ए टावर ऑफ हाइट h मीटर. क्वेश्चन नंबर ये 4 है इस एक्सरसाइज का. तो आपने लिखा लेट हाइट ऑफ टावर BC, आप डायरेक्ट लिख सकते हो इक्वल टू h मीटर, ठीक है. एंड पॉइंट A, आपने A लिया तो A लिखना पड़ेगा. पॉइंट A दैट इज BC इक्वल टू 30 मीटर. एंड एक और चीज दे रखी है, एंगल BAC, अदरवाइज CAB 30 मीटर होगा. हाँ AB, हाँ, ये
ए बी होगा ये सर, ऑफ कोर्स ए है ना, बी सी तो ऊपर है तो ए बी होगा 30 मीटर, तो हमने ए बी को 30 लिख दिया। एंड एंगल यू कैन राइट आइदर बी ए सी अदरवाइज सी ए बी, एनीवन। तो हमने लिख दिया बी ए सी इक्वल टू 30 डिग्री। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट। ये तो आपने सिर्फ क्वेश्चन को देखकर डायग्राम बनाया है और डायग्राम को देखकर ये स्टेटमेंट लिखा है। अब आपका सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। सो इन ऑल द क्वेश्चन यू विल स्टार्ट इन राइट एंगल ट्रायंगल। आप ट्रायंगल का जो भी नाम होगा वो लिखोगे, तो आप लिखोगे इन राइट एंगल ट्रायंगल, एंगल्ड ट्रायंगल, दैट इज ABC। We know that एक ही सिंगल फॉर्मूला tan थीटा इक्वल टू, हाँ पहले आप ऐसे लिखोगे tan थीटा इक्वल टू b बाई P by सर P बाई b है ना, सो p बाई b दैट इज परपेंडिकुलर बाई बेस। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर दैट इज BC, आपको ये लिखना होगा BC अपॉन AB। नाउ पुट ऑल द वैल्यूज, tan 30 थीटा मीन्स 30 डिग्री 1 by and BC means BC is 30, BC means H and AB means again 30. No need to write here meter, you will write in the last. tan 30 degree you know that 1 upon under root 3, या अदरवाइज आप वैसे भी पता कर सकते हो, tan की बात की है ना तो sin 30 फिर cos 30 है ना, तो आप ये वैसे भी निकाल सकते हो। आपको डिनोमिनेटर में मैंने क्या बताया था, क्या लिखना है ऑलवेज 2, तो यहाँ 2 नहीं लिखोगे, सीधा बताओ साइन tan थीटा मीन sin थीटा अपॉन cos 30 डिग्री कहाँ 0 30, तो देखो इधर से कितनी फिंगर है 30 डिग्री ये है, तो कितने डिग्री यहाँ कितनी फिंगर है ओनली 1, तो यहाँ 1 आपने लिख दिया, ये आपका हो गया 1, और आप cos चाहिए तो ऊपर कितनी फिंगर है 3, और लिखना दोनों को रूट में ही है, तो अंडर रूट 1 मीन्स 1 ही होगा, और ये 3 है तो अंडर रूट 3 हो जाएगा, इक्वल टू h अपॉन 30। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो या डायरेक्ट 30 को इधर भेज दो, h ही तो फाइंड करना है, सो ट्रांसपोज दिस 30 टू लेफ्ट साइड, तो जैसे ही आप इसे ट्रांसपोज करते हो सो यू विल गेट h इक्वल टू 30 अपॉन अंडर रूट 3, बट दिस इज ए नॉट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, रेशनलाइज इट, सो यू विल मल्टीप्लाई हियर बाय अंडर रूट 3, दोनों में करना है। जब इस तरह का क्वेश्चन मिल जाए तो आप रेशनलाइज जरूर करोगे, तो अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, सो यू विल गेट दिस इज 3 अंडर रूट 3 एंड अपॉन 3 ओनली 3 कैंसिल भी कर सकते हो, तो ये आपका हो जाएगा 10√3, यस बिल्कुल सही, तो ये 10 हो गया, और यहाँ पे आप देख दिया दिस इज 10 अंडर रूट 3, और नाउ दिस इज h मींस हाइट, तो आप लिख सकते हो HERGHT हाइट ऑफ टावर, और ये क्या है मीटर दिया है पूरा क्वेश्चन, तो आप मीटर लिख दोगे। बट इफ द वैल्यू ऑफ रूट 3 इज गिवन देन यू कैन पुट, अदरवाइज नो नीड टू राइट द वैल्यू ऑफ, वैसे हमें पता है कि अंडर रूट 3 का वैल्यू 1.732 होता है, बट इन द क्वेश्चन इट इज नॉट गिवन देन नो नीड टू पुट हियर। अगर आप और पुट कर भी देते हो तो यहाँ तो आसानी है, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, सो यू कैन राइट इफ यू नो द वैल्यू 10 into 1.732 मीटर, दैट इज 10 है ना, तो 1 डिजिट आगे बढ़ जाएगा 17.32 मीटर। तो आप चाहो तो ये भी आंसर लिख सकते हो, अदरवाइज आप वहां भी छोड़ सकते हो 10 अंडर रूट 3, बोथ आंसर इज करेक्ट, बट इट इज नेसेसरी if the value of root 3 is given then 100% you will put and simplify it, but if the value of root 3 is not given in the question then no need to write the putting here value under root 3, that is 1.732, आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, this is the final answer। तो आपने देखा कि ये पहला क्वेश्चन था, कितना आसानी से आपने सॉल्व किया।